میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم عاشقوں کے لیے اس سے بڑا کوئی واقعہ نہیں ہے کائنات کے اندر کہ حضور کی ولادت طیبہ، اس لیے کہ ساری نعمتوں کی جو وجہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ، اگر مجھے محمد کو پیدا کرنا مقصود نہ ہوتا تو نہ میں آدم کو پیدا کرتا نہ تمہیں پیدا کرتا، نہ میں زمین کو پیدا کرتا نہ میں آسمان کو پیدا کرتا۔ سب سے بڑا تہوار، سب سے بڑی خوشی مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت طیبہ ہے۔ اب حضور کی شان کیا ہے، حضور کا مقام کیا ہے، آقا علیہ السلام کا مرتبہ کیا ہے؟ کیونکہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں جب تک اس نبی کی معرفت ہمیں نصیب نہ ہو، کلمے کا صحیح عرفان ہمیں نصیب ہو ہی نہیں سکتا۔ تو ہمیں یہ غور کرنا چاہیے کہ اللہ کے تمام انبیاء کرام، کم و بیش 1,24,000 انبیاء کرام زمین پر آئے، ان کا عنوان ایک ہی تھا۔ عنوان یہ تھا کہ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے یعنی توحید۔ ہر نبی کا عنوان توحید، اللہ ایک ہے۔ لیکن ان کا جو دائرہ کار تھا، محنت کا علاقہ جو تھا دعوت و تبلیغ کا، وہ صرف اور صرف ان کی قوم تھی۔ قوم کے علاوہ وہ کسی اور دوسرے کو وہ ان کے مخاطب نہیں تھے، ان کی طرف ان کی توجہ نہیں تھی۔ جس قوم کے وہ تھے اسی قوم میں اللہ نے ان کو مبعوث فرمایا۔ تنہا ایک ذات ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی، جس کو عالم کے لیے نہیں بلکہ اللہ نے عالمین کے لیے بھیجا۔ اور خاص طور پر بات یہ ہے، عالمین کا مطلب یہ کہ اللہ کے سوا جو کچھ ہے وہ سب کے نبی ہیں۔ تو ہم اپنی زبان میں یہ کہہ سکتے ہیں سدرہ پر موجود وہ جبریل کے بھی نبی ہیں اور تحت الثری میں پڑے ہوئے کیڑے کے بھی نبی ہیں۔ ایک خاص بات، اب آپ غور کریں، ان سب کو بتانا ہے اللہ ایک ہے، ان سب کو بتانا ہے اللہ ایک ہے، اللہ کی توحید سمجھانا ہے۔ غور کیجئے، چاند کے ہونے میں کسی کا اختلاف نہیں، ہر مذہب کا انسان، ہر مسلک کا انسان مانتا ہے کہ چاند کا وجود ہے، لیکن چاند 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، جو اس کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے علماء سے پوچھو اس کے لیے کتنی باریکیاں ہیں۔ چاند ہے، سب کا یقین ہے، لیکن چاند 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، جس کو کہتے ہیں چاند کی شہادت دینا۔ تو جو چاند کی شہادت دینے کے لیے آتا ہے علماء اس کو چیک کرتے ہیں، یعنی کسی بھی چلتے پھرتے آدمی نے کہہ دیا کہ میں نے عید کا چاند دیکھ لیا، رمضان کا چاند دیکھ لیا، رجب کا چاند دیکھ لیا، شعبان، نہیں مانا جائے گا۔ چاند کی گواہی کے لیے کون چاہیے؟ نمبر 1 نمازی ہو، متشرع، شرع کا پابند ہو، بلکہ ہمارے امام اہل سنت نے تو یہ بھی لکھا کہ وہ بامروت ہو۔ پھر بامروت کی جو تعریف ہے فقہاء کے نزدیک وہ یہ، میں اپنے الفاظ کے جامع میں اتنا بتا دوں، اگر وہ بازار میں چلتے چلتے ککڑی کھا لے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر وہ لنگی اور بنیان پہن کر کے بازار میں چل پڑے تو اس کا شمار بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ بلا وجہ وہ اگر ہوٹلوں میں کھانا کھاتے پھرتا ہے تو اس کا شمار بھی بامروت لوگوں میں نہیں ہوگا۔ یہ بامروت لوگوں کی پہچان ہے، اس کی تشریح ہے۔ آپ مجھے بتائیں، چاند ہے لیکن 29 کو دکھا یا 30 کو دکھا، اس کی شہادت دینے والے کے لیے اتنی شرطیں ہیں، وہ اتنا کامل اور مکمل ہونا چاہیے تب اس کی بات مانی جائے گی۔ اندازہ کریں، چاند ہے اس کو سب مانتے ہیں، مگر 29 کو ہوا یا 30 کو ہوا، اس کی جو شہادت دے وہ اتنا کامل ہونا چاہیے دین میں۔ تو اللہ ہے، اس کی شہادت دینے والے کا کردار کیسا ہوگا، وہ کتنا کامل اور مکمل بنا کر کے بھیجا گیا ہوگا، جس نے اللہ اکبر پوری کائنات کو یہ بتانا، اس لیے کہ صرف اسی نے بتانا ہے، ورنہ کوئی اور نہیں بتا سکتا، کیونکہ اللہ ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، قرآن اللہ کی کتاب ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے، دین اسلام حق ہے، صرف زبان رسالت کا اعتبار ہے۔ تو چونکہ بات کرنے والا جتنا پختہ ہوتا ہے اس کی بات پر اتنا ہی یقین ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو اندازہ فرمائے، میرے اللہ نے اپنے ہونے کے لیے جس کو دلیل بنا کر کے بھیجا اس کو سراپا کتنا مضبوط بنایا ہوگا۔ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم
रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास अल्लाह की तरफ से दलील आ गई है। अब वो रसूल जिसने अल्लाह के होने की दलील बन करके आना है या आ चुके हैं, उनकी शान क्या है? सारे अंबिया किराम की सारी सिफात हुजूर में जमा कर दी। कितना कामिल बना है, लेकिन वो सिर्फ वही सिफत को उठा के नहीं रखा। अंबिया किराम की सारी सिफात हुजूर में रख दी, लेकिन वही उठाकर नहीं रखा। नंबर एक, जो सिफत उनमें थी उस सिफत को मजीद और कामिल किया और कामिल करके फिर हमारे नबी में रखा। तो अगर हमारे हुजूर अलैहिस्सलाम की कम से कम सिफत आप गिन सकते हैं, एक नबी की अगर एक शान भी ले लें तो हुजूर अलैहिस्सलाम को कम से कम कितनी शानें अता की? 1,24,000 कम से कम। और एक नबी में एक शान नहीं थी, हर नबी सरापा शान वाला था, और वो सब कुछ उठाकर हमारे नबी में रखा। मिसाल के तौर पर देखिए, हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने सफवत अता की। हजरत आदम को सफवत मिली, चुने हुए हैं हजरत आदम, लेकिन आदम अल्लाह के खलीफा और हुजूर भी अल्लाह के खलीफा, दोनों अल्लाह के खलीफा। अब दोनों की खिलाफत में फर्क क्या है? सुभान अल्लाह, हमारे नबी की शान देखें, दोनों की खिलाफत में फर्क क्या है? कुरान कहता है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। तवज्जो है आपकी, अपने नबी की। आदम भी खलीफा हैं और जाने आदम मोहम्मद रसूलुल्लाह ये भी खलीफा हैं, लेकिन दोनों की खिलाफत में फर्क क्या है? कुरान कह रहा है इन्नी जाइलुन फिल अर्द खलीफा, मैं जमीन पर अपना खलीफा बनाने वाला हूं। और मेरे नबी की खिलाफत की बात आई तो क्या कहा? वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने आपको आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजा। आदम की खिलाफत ये है कि जमीन पर भेजकर खलीफा बनाएंगे। आदम की खिलाफत ये है जमीन पर भेजकर खलीफा बनाएंगे, और खातिमुन नबीयीन की खिलाफत ये है कि तुम्हें आलमीन के लिए रहमत बनाकर भेजेंगे। आदम आकर बनेंगे और मोहम्मद को बनाकर भेजा जाएगा। दोनों में फर्क देखें, वो आकर बनेंगे और उनको बनाकर भेजा जाएगा, और फिर ये जमीन के खलीफा हैं और वो तमाम आलमीन के लिए रहमत है, आलमीन के लिए रहमत है। तवज्जो फरमाए। उसके बाद फिर देख लें आदम अलैहिस्सलाम की ये शान। एक बात और आ गई हजरत आदम अलैहिस्सलाम की। आदम अलैहिस्सलाम की सबसे बड़ी शान ये है कि अल्लाह ने फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सबसे बड़ी शान आदम अलैहिस्सलाम, फरिश्तों को हुक्म दिया कि आदम को सजदा करें। सारे फरिश्तों ने सजदा किया। आपको पूरा वाकया पता है, बार बार सुनते हैं। ये कितना बड़ा एजाज है कि फरिश्तों ने हजरत आदम को सजदा किया, सब ने किया, मगर पहले फरिश्ते सजदे में नहीं थे, फिर सजदे में चले गए। तवज्जो है, फिर उठ गए। यानी सजदे का एक मुकर्रर पीरियड है, उसमें फरिश्तों ने सजदा किया। ठीक बात समझ में आती? पहले नहीं थी, इसलिए तो हुक्म के सजदा करो, सजदा किया, फिर उठ गए। उठना भी पता है, झुकना भी पता है, लेकिन ये आदम अलैहिस्सलाम की शान। और हमारे नबी की, उनको कहा सजदा करो, फरिश्तों का आदम को सजदा करो। और हमारे नबी के लिए क्या फरमाया? फरिश्तों को दुरूद पढ़ो, दुरूद भेजो। लेकिन खास बात यह है कि आदम को वहां फरिश्ते सजदा कर रहे हैं, लेकिन उस सजदे में अल्लाह शरीक नहीं है, क्योंकि अल्लाह की शान नहीं है किसी को सजदा करना, मगर ये हमारे नबी की शान है। आदम को सजदा करवा रहा है फरिश्तों से, खुद सजदे में शामिल नहीं है। यहां फरिश्तों से दुरूद पढ़वा रहा है और खुद भी दुरूद भेज रहा है। दुरूद भी पढ़वा रहा है और खुद भी दुरूद अपनी शान के मुताबिक भेज रहा है। और फिर किस शान से बयान कर रहा है? इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी। जो लोग अरबी पढ़ते पढ़ाते वो जानते हैं मुजारे के सेगे के साथ है। मुजारे के सेगे मतलब अभी ये काम खत्म नहीं हुआ, शुरुआत कब से हुई उसका भी इल्म नहीं, और खत्म कब होगा उसका भी इल्म नहीं। इसी को तो मुजारे के अभी काम खत्म नहीं हुआ, काम जारी है। तो दुरूद कब से भेजा जा रहा है और कब तक भेजा जाता रहेगा, इसकी कोई इंसान जो है वो नहीं लगा सकता, इसका अंदाजा नहीं लगा सकता। लेकिन आयत क्या कह रही है? देखिए आयत क्या कह रही है? युसल्लूना अलन नबी। दुरूद किस पे भेजा जा रहा है? किस पे? नबी पे। ये नहीं कहा मोहम्मद पे भेजा जा रहा है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसलिए कि दिमाग वाले भी तो बहुत हैं। अगर ये कहा जाता ना कि मोहम्मद पे दुरूद भेजा जा रहा है, तो लोग कहते हैं अब्दुल मुत्तलिब ने तो 20
अप्रैल 571 ईस्वी में इनका नाम मोहम्मद रखा। तो इसका मतलब दुरूद भेजने का अमल कब से शुरू हुआ? 20 अप्रैल से 571 ईस्वी से शुरू हुआ, क्योंकि नाम मोहम्मद कब पड़ा? जब हुजूर पैदा हुए, इसलिए अल्लाह ने मोहम्मद नहीं कहा। फिर उसके बाद ये भी नहीं कहा कि रसूल पर दुरूद भेजे, क्योंकि अगर ये कहा जाता ना कि रसूल पे दुरूद भेजा जा रहा है तो कहा रिसालत का ऐलान का हुक्म तो गारे हिरा में आया, तो जब 40 साल के हो गए तो तब रसूल होने का ऐलान किया। तो इसका मतलब जब उम्र 40 की हुई तब से दुरूद शुरू हुआ। अल्लाह ने क्या कहा? युसल्लूना अलन नबी, नबी पर दुरूद भेजा जा रहा है, फरिश्ते ही भेज रहे हैं और अल्लाह ही भेज रहा है। तो अब हुजूर से ही पूछा गया, या रसूल अल्लाह आप नबी कब से हैं? हजरत जाबिर ने पूछा नबी कब से? तो आका फरमाते हैं जब आदम मिट्टी और पानी की मंजिलों को तय कर रहे थे तब भी मैं नबी था, यानी अभी वजूद आदम नहीं था तब भी मैं नबी था, और जब मैं नबी था तब से नबी पे दुरूद भेजा जा रहा। ये अपने नबी की शान है। तो देखा हर नबी की सिफत को कमाल दर्जा मेरे महबूब में डाल दिया। 2-3 बातें अर्ज करके बात पूरी कर दी जाए। जैसे मिसाल के तौर पे देखें, हजरत हमें मेहनत की जरूरत है कि हम हुजूर के किस अजमत पे मेहनत करें। बहुत मैं ये बात पूरे हिंदुस्तान में कह रहा हूं, अभी आपसे भी कहता हूं, हर आदमी इस वक्त तो दुनिया में अपना बाप लेके बैठा है, अपना पीर लेके बैठा है, अपना उस्ताद लेके बैठा है। सबकी तारीफ करो, सबकी शान बयान करो, लेकिन सबसे ज्यादा हुजूर की शान बयान करो। अगर अपनी औलाद को आगे मुसलमान रखना है तो बात अच्छी तरह याद रखना, हमारे बुजुर्गों ने यही किया है। गौसे पाक ने, गरीब नवाज ने, वारिस पाक ने, महबूब इलाही ने, लोगों को इनके पीरों के नाम ही याद ना रहे, उन्होंने रसूलुल्लाह इतना याद कराया कि उनको उनके पीरों के नाम याद ना रहे। बड़ी माजरत के साथ बुरा मत मानना, हम सब पीरों को मानते हैं, लेकिन सारे पीरों की आबरू एक ही हस्ती की वजह से है, और उसे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह कहते हैं। दुनिया में एहतराम के काबिल हैं जितने लोग, मैं सबको मानता हूं, मगर मुस्तफा की बात। लोग अपने बाप दादाओं में लगे हुए, अपने बाप दादाओं की तारीफ में, क्या बाप दादा क्या चीज है? अल्लामा जामी ने कहा था, बंदे इश्क शुदी तर्क नसब कुन जामी के फुला इब्ने फुला चीजें नेस्त। इसका उसका बेटा कहलाना हमारे लिए फख्र की बात नहीं है, हमारे लिए तो इश्क का बंदा कहलाना फख्र की बात है। तो अगर मुस्तकबिल में अपने बच्चों का ईमान बचाना है तो मेहनत करनी पड़ेगी मुसलमानों को हुजूर की अजमत के जलसों पर। अगर खतना की महफिल हो तो भी हर अमीर और गरीब अपनी हैसियत के मुताबिक अजमत रसूल का जलसा रखें। अगर शादी की महफिल हो तो भी अजमत रसूल का जलसा रखें। अगर मैयत हो जाए तो भी 3, 10, 20 पर अजमत रसूल का, अजमत रसूल, अजमत रसूल, अजमत रसूल। इतनी मेहनत कीजिए कि आज जो चैलेंजेस हमारे सामने, आप क्या समझ रहे, यहूदियत, नसरानियत और भी दीगर बदमज़हबियत जो सर चढ़ रही है, वो सिर्फ रसूलुल्लाह की शान को टारगेट कर रही है, और हमारे बच्चों को कुछ पता ही नहीं है। हमारे बच्चों को ये तो पता है कि किस खान साहब हीरो ने किससे शादी की, ये तो पता है, लेकिन जिसका कलमा पढ़ते हैं उस रसूल ने किससे शादी की, क्या हमारे बच्चों को ये भी पता है? जिसका कलमा पढ़ते हैं उसके बारे में कुछ भी नहीं पता तो कलमा रह कहाँ जाएगा? इसलिए हमें मेहनत की जरूरत है। तो अंबियाए किराम में जो शानें थी वो शानें अल्लाह ने सब बदरजे कमाल, बदरजे अतम हमारे नबी में रखा। Allah